پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ ZBC سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی بیجنگ میں ہونے والی ان اہم ملاقاتوں کی جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان دوسرے روز بھی تجارت، مشرق وسطیٰ اور ایران کے جوہری پروگرام پر گفتگو جاری رہی۔ امریکی صدر کے دعووں کے باوجود چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بعض معاہدوں پر خاموشی نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ President Xi's an incredible guy. Got along, made a lot of great trade deals, including over 200 planes from Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they... ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے سے پہلے تمام معاملات شفاف ہونا ضروری ہیں، جبکہ نئی دہلی میں برکس اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان سفارتی بیان بازی نے بھی توجہ حاصل کی ہے۔ I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. پروگرام میں یہ بھی دیکھیے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے باوجود رابطوں اور مذاکرات کی باتیں کیوں اہم سمجھی جا رہی ہیں، اور گزشتہ ایک سال میں دونوں ممالک کی عسکری حکمت عملیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمیشہ بات چیت کے لیے ایک کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ Because there should be a window for always for a dialogue. جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی جانب سے 5 دیہات خالی کرنے کے حکم کے بعد خطے میں ایک نئی بے چینی پیدا ہو گئی ہے، جبکہ غزہ اور سرحدی علاقوں کی صورتحال پر عالمی رد عمل بھی زیر بحث رہے گا۔ لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر جنگ رکی نہیں ہے۔ بھارت میں 4 برس بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر اپوزیشن اور عوام کی برہمی، اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں مسلسل بڑھتی قیمتوں کی وجوہات۔ آج کے پروگرام میں اس کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کریں گے۔ یوکرین جنگ کے معاشی اثرات نے عام لوگوں کی زندگیاں کس طرح بدل دی ہیں، ایک رپورٹ ان خواتین کے بارے میں جو غربت کے باعث اپنی کوکھ کرائے پر دینے پر مجبور ہیں۔ ایک بچہ اپنے والدین کا انتظار کر رہا ہے جو جنگ کے باوجود سرگیسی کے لیے یوکرین آ رہے ہیں، ایک ایسا ملک جو ابھی بھی حملوں کی زد میں ہے۔ اور مشرقی لندن کی ایک مسجد کے امام عبدالحلیم خان کو عمر قید کی سزا کیوں سنائی گئی، اس اہم مقدمے کی تفصیلات بھی آج کے پروگرام میں شامل رہیں گی۔ پروگرام میں آپ کی ملاقات ہوگی فیضان اللہ سے، جنہوں نے ہاتھوں کی بجائے دانتوں سے قلم پکڑ کر 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور ہمت کی نئی مثال قائم کی۔ مجھے MS ایکسل بھی آتا ہے، پاور پوائنٹ بھی آتا ہے، اور MS پینٹ بھی آتا ہے، اور AI بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جانیے جنوبی انگلینڈ میں دیو ہیکل عقابوں کی رہائی پر چرواہوں کے خدشات کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں فارمرز کہتے ہیں کہ ایسی ہی اسکیم 1975 میں شروع ہونے کے بعد کئی پرندے ان کے مویشی کھا گئے۔ ایک شخص نے اس عقاب کو بھیڑ کے بچے کو پکڑتے وقت یہ ویڈیو بنائی۔ اور ZBC ریڈز میں آج بات ہوگی کاجو کے صرف ایک نہیں بلکہ 10 حیران کن فوائد کی۔ اس کے علاوہ مزید خبریں اور تجزیے بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کے آخری مرحلے میں چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ کو وانگ نان ہائی کا دورہ کروایا، جو چین کی اعلیٰ قیادت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کی شی جن پنگ سے تجارت، ایران اور دیگر عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور ان کے مطابق ایران کے جوہری پروگراموں پر دونوں ممالک کا موقف ایک دوسرے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم نہیں کرے گا، جبکہ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اسی دوران امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ بیجنگ نے امریکہ سے تیل اور بوئنگ کے سینکڑوں طیارے خریدنے پر اتفاق کیا ہے، اور تجارتی مذاکرات گزشتہ دور کے مقابلے میں زیادہ مثبت رہے ہیں۔
ताहम बीजिंग में होने वाली चीनी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने इन मुआहदों से मुतल्लिक सवालात को बज़ाहिर टाल दिया और तिजारती मुआहदों पर किए जाने वाले सवालात का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया है। मुआहदों की तस्दीक या तरदीद करने की बजाय तर्जुमान ने इस अहम इत्तफाक राय की तरफ इशारा किया जिस तक दोनों फरीक ट्रंप के दौरे के दौरान पहुंचे हैं। ताहम चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक बीजिंग ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और देरपा अमन के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। चीन का कहना है कि यह तनाज़ा जारी नहीं रहना चाहिए और इसके हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत ज़रूरी है। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा कि शी जिनपिंग ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा करने की पेशकश की है, जबकि वाशिंगटन तेहरान के साथ किसी मुमकिना मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए ज़्यादा सब्र करने को तैयार नहीं। माहिरीन के मुताबिक चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और तेल का बड़ा खरीदार है, इस बहरान में अहम सिफारती खिलाड़ी के तौर पर सामने आ सकता है, जहां वो खुद को आलमी सतह पर अमन के हामी और जिम्मेदार ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका ईरान के मामले में फौरी पेशरफ्त का ख्वाह दिखाई देता है। चीन के दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने यह इंदिया भी दिया कि वो आइंदा चंद रोज में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियां नरम या ख़त्म करने का फैसला कर सकते हैं। उनके मुताबिक चीन ने अमेरिका से अरबों डॉलर मालियत की सोयाबीन खरीदने पर आमादगी जाहिर की है, जिसे अमेरिकी किसानों के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ताइवान के मामले पर गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी है और इस हवाले से कोई भी फैसला मुस्तकबिल में किया जा सकता है। उनका कहना था कि ताइवान से मुतल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। सदर ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में ताइवान का मौजू भी ज़ेर बहस आया, ताहम उनके मुताबिक फिलहाल ऐसा महसूस नहीं होता कि ताइवान के मसले पर कोई बड़ा तनाज़ा पैदा होने जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कि आया वो शी जिनपिंग को आमिर समझते हैं, सदर ट्रंप ने कहा कि मैं उन्हें चीन का सदर समझता हूं और उनकी इज्जत करता हूं। Got along, made a lot of great trade deals, including over 200 planes for Boeing, with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also, the engines. So they're buying General Electric. So it's approximately 450 engines, 200 planes, and a promise of up to 750 if they do a good job. We had an amazing time. भारत में ब्रिक्स के वुज़राए ख़ारजा इजलास के पहले दिन मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी छाई रही, जहां ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात पहली बार जंग के बाद एक ही मेज़ पर आमने सामने आए। इजलास के आगाज में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों बाशमूल आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और बिला रुकावट समंदरी आमदोरफ्त पर जोर दिया। तहम बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के खिलाफ जारहियत में मुलव्वस होने और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमाराती नुमाइंदे के तबसरे के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है, ताहम ताउन करने वाले मुमालिक के साथ मशरूत है। As you have all witnessed, my country has within the span of less than a year twice been subjected to brutal and unlawful aggression by the United States and Israel. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. 2024 में ब्रिक्स की तोसी के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों इसके रुकन बने। ताहम हालिया इख्तिलाफात ने इजलास में मुश्तरका एलामिये के इम्कान पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत, जो इस वक्त ब्रिक्स की सदारत कर रहा है, एक मुश्किल तवाज़न का सामना कर रहा है, क्योंकि इसे ईरान, इसराइल, अमेरिका और खलीजी ममालिक के दरमियान पेचीदा सिफारती और मुआशी ताल्लुकात को बैक वक्त संभालना है। इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा तमाम ब्रिक्स रुकन ममालिक इसराइल पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर ममालिक ईरान की हिमायत करते हैं और इसी चैलेंज से इस वक्त वज़राए ख़ारजा के इजलास में निमटा जा रहा है। ताहम सितंबर में होने वाले सरबराही इजलास के मौके पर सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है।
याद रहे कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ताहम 2024 में रूस के शहर काजान में होने वाले ब्रिक्स सरबराही इजलास के दौरान इसकी रुकनीत में तोसी की गई थी। नए अराकीन में मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया है। ब्रिक्स ग्रुप अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमलों के बाद से जंग के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकाम रहा है। इंडिया के लिए ये सूरत हाल पेचीदा है। इंडिया के अमेरिका और इसराइल दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। गुज़िश्ता 1.5 दहाई के दौरान इसराइल इंडिया के एक अहम दिफाई शराकतदार के तौर पर उभरा है। इंडिया के ईरान के साथ भी तारीखी रवाबत हैं और वो आबनाए हुर्मुज के जरिए आने वाले तेल और गैस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। इंडिया के मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के साथ भी मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात हैं और इन खलीजी ममालिक में तकरीबन 1 करोड़ इंडियन काम करते हैं। ये सारी पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर हो रही है जब इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इजलास के बाद ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि ईरान किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ मसामत करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अमरीकियों पर एतबार करने का कोई जवाब नहीं है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज में किसी भी रुकावट का जिम्मेदार ईरान नहीं है और ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया और सिर्फ अपने दिफा में इक़दाम किए हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका 40 रोज़ा जंग के बाद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, जिसके बाद इसने एक बार फिर मायूसी में मुज़ाकरात की बातचीत शुरू की है। ताहम उनके बकौल ईरान को अमेरिका पर अब कोई एतमाद नहीं है और इसकी वाज़ेह वजूहात मौजूद हैं। I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. In 2015, we made a nuclear deal with Americans, together with other members of the Security Council and Germany, the so-called P5+1. We negotiated for more than 2 years, almost 2.5 years. And we came to a very good deal, and the whole world celebrated that as an achievement of diplomacy. But only one year after it was concluded, the new US administration, which was the first term of Trump administration, withdrew from that deal with no justification, with no reason. इंडिया में कौम परस्त जमात RSS के सेक्रेटरी जनरल और फिर इंडियन फौज के साबिक सरबराह की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न करने के बयानात के बाद, जहां पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इंडिया में इस्लामाबाद के साथ बातचीत के हक में उठती आवाज़ों को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है, वहीं इंडिया के साथ किसी भी बैक चैनल या ट्रैक 2 राब्तों से लाइल्मी जाहिर करते हुए तबसरे से गुरेज किया है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मिसाली तो कभी नहीं रहे, लेकिन 2019 के बाद से इनमें मुसलसल तनज़्ज़ुली ही देखी गई है। फरवरी 2019 में इंडिया की पाकिस्तान में फिजाई कार्रवाई और फिर उसी बरस अगस्त में आर्टिकल 370 के खात्मे और जम्मू और कश्मीर को इंडिया में मरकजी इंतजाम वाला खिता बनाने के इकदामात के बाद से अप्रैल 2025 में पहलगाम में शिद्दत पसंदों के हमले और इसके नतीजे में मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के माबैन 4 रोज़ा लड़ाई तक बात किसी भी मरहले पर बनती नजर नहीं आई। इस तनाज़े के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाबिता सिफारतकारी तकरीबन ना होने के बराबर है। सरहद बंद है, क्रिकेट ताल्लुकात मुनक़ता हैं और तिजारत और सिंतास मुआहिदा भी मुअत्तल हो चुका है। इस लड़ाई की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और सिफारती दूरियां मजीद बढ़ीं, जिसके बाइस मामूलात की बहाली की गुंजाइश भी कम रह गई। ताहम हाल ही में इंडिया में RSS के रहनुमा तातरिया हौसबाले के इंटरव्यू ने ताल्लुकात के मुंजमद तालाब में एक पत्थर फेंका है। हौसबाले ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। RSS के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक के दरमियान जमूद को तोड़ने में अवाम से अवाम तक राब्ते को कलीदी करार दिया और कहा कि अब इसे ज्यादा से ज्यादा आजमाया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से छोटी मोटी इश्तियाल अंगेजियां जैसे पुलवामा वगैरह की जाती हैं तो हमें हालात के मुताबिक इसका भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क और कौम की सलामती और खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है।
और वक्त की हुकूमत को इसका नोटिस लेकर मुनासिब इक़दामात करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ मुकालमे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए सफारती ताल्लुकात बरकरार रखे जाते हैं, तिजारत और कारोबार जारी रहता है और वीज़े भी दिए जाते हैं, क्योंकि हमेशा बातचीत के लिए एक खिड़की खुली रहनी चाहिए। Because there should be a window for always for a dialogue. इंडिया में आरएसएस रहनुमा के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की इस तजवीज़ को बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता बरस होने वाली 4 रोज़ा जंग को 1 साल मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक अपनी अस्करी कामयाबियों के दावे भी दोहरा रहे हैं। लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस 1 साल में दोनों ममालिक ने अपनी दिफाई हिकमत अमलियों में नुमायां तब्दीलियां की हैं, नए हथियार हासिल किए हैं और नई फोर्सेस भी बनाई हैं। इस 1 साल में इंडिया और पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमलियों में क्या बदला, जानिए शकील अख्तर और रूहान अहमद से। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 रोज़ा जंग ने इंडिया की तरह पाकिस्तान को भी अपनी फौजी हिकमत अमली पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है। हमने देखा कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने अपने दिफाई बजट में 20% का इजाफा किया, जो 428 अरब रुपए के इजाफे के बाद 2550 अरब तक पहुंच चुका है। हुकूमत का कहना है कि ये बजट में इजाफा इंडिया के साथ जंग और मुल्क में बढ़ते हुए शिद्दत पसंदों के हमलों के सबब किया गया है। दूसरी तरफ स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान का जो दिफाई स्पेंडिंग है वो गुज़िश्ता बरस 2025 में $11.9 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। माहिरीन कहते हैं कि मई 2025 की जंग ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि माजी की जंगों की तरह अब फौजें बॉर्डर पर आमने सामने नहीं आती। अब हमले दूर बैठकर होते हैं, फिजा से, मिसाइलों से और ड्रोन से। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जंग के फौरन बाद एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना दी। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। इससे पहले पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले मिसाइल ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक यानी न्यूक्लियर मकासद के लिए रखे जाते थे, लेकिन मई की जंग ने यह वादे किया कि पाकिस्तान को ऐसे रिवायती या नॉन न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत है जो लंबे फासले तक मौसर हमले कर सकें। इसलिए फतेह 1, फतेह 2 और अब फतेह 3 जैसे मिसाइलों पर तवज्जो बढ़ी है। माहिरीन कहते हैं कि फतेह 3 को इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी फौज में एक ड्रोन्स वॉरफेयर यूनिट भी बनाया है, जिसने गुज़िश्ता बरस के आखिर में एक मशक भी की थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कह चुके हैं कि अब जो जंगें होंगी वो मल्टी डोमेन होंगी, यानी कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एक अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस और इस बरस भी चीन की मदद से स्पेस में कुछ सैटेलाइट्स भी भेजी हैं जो उसको इंटेलिजेंस गैदरिंग में मदद करेंगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी अपनी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इत्तलात है कि पाकिस्तान चीन के जदीद J-35 स्टेल्थ तैयारे हासिल करने पर गौर कर रहा है। इसके साथ साथ तैमूर मिसाइल जैसे नए लॉन्ग रेंज हथियार भी आजमाए जा रहे हैं। नेवी ने भी अपने बेड़े में नई जंगी जहाज और हंगुरू क्लास आबदोजें शामिल की हैं, जो चीन के ताबन से तैयार की जा रही हैं। माहिरीन कहते हैं कि मई की जंग ने पाकिस्तान को ये सबक दिया है कि जंग लड़ने के तरीके अब बदल चुके हैं, और इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में तब्दीली लेके आ रहा है। ताहम कुछ लोगों को ये भी खदशा है कि इस तैयारी से शायद जंग तो ना रुक पाए, लेकिन खत्ते में आर्म रेस दोबारा शुरू हो जाएगी। इंडिया के दिफाई तहकीक के इदारे DRDO ने गुज़िश्ता 10 दिनों में अग्नि समेत 3 नए मिसाइलों के तजुर्बे किए हैं। पिछले साल की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद DRDO ने नए हथियारों के तजुर्बे और उन्हें बनाने की सरगर्मियां बहुत तेज कर दी हैं। इस जंग में दोनों मुल्कों ने दूर तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया था। इंडिया में अब बेशतर तवज्जो जदीद साख्त के इन्हीं हथियारों के हुसूल और तैयारी पर फोकस्ड है। इस जंग के बाद इंडिया ने मुस्तकबिल की किसी मुमकिना जंग के लिए अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी बदल दी है। फौज को नए तर्ज पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर इंडिया की मुसल्लह अफवाज की एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आला फौजी हुक्काम ने बताया कि अब तीनों अफवाज की 3 ज्वाइंट थिएटर कमान तश्कील दी जा रही हैं। दिफाई तज्जियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि इसका बाज़ाब्ता ऐलान हुकूमत जल्द ही करने वाली है। तो ये 3 जो इंटीग्रेटेड थिएटर बैटल ग्रुप्स हैं, ये इकट्ठे काम करेंगे। एयर, लैंड, सी, स्पेस एंड साइबर कैपेबिलिटी में इसका कंसंट्रेशन होगा। दुनिया में हथियारों की खरीदारी और जंग पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल इदारे सिपरी के मुताबिक इंडिया ने जंग के बाद एक बरस में $92 अरब दिफा पर खर्च किए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनमें से $70 अरब गोला बारूद, मिसाइलों और कई तरह के हथियारों की फौरी खरीदारी के लिए मंजूर किए गए। 4 दिन की जंग में जंगी जहाज़ों के अलावा इसराइली साख के हिराप और हार्पी
आर्म ड्रोन्स, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। जंग के बाद इंडिया अपनी एयरफोर्स और नेवी के लिए मजीद 140 रफाल जंगी जहाज़ों की खरीदारी को आखिरी शक्ल दे रहा है। इसराइल से मजीद एडवांस रडार और आर्म ड्रोन हासिल किए जा रहे हैं। अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीदारी की बातचीत भी फाइनल स्टेज में है। इंडियन मिलिट्री के मुताबिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले रोकने में बहुत मौसर पाया गया था। इंडिया ने अब मजीद 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। तज्जियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि इंडिया अब अपनी जंगी तैयारी में हाई टेक हथियारों पर जोर दे रहा है। जो हथियार हैं वो मेनली स्टैंड ऑफ हथियार हैं, उनमें लोग नहीं जाते। वो जैसे ड्रोन्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं, अनमैन्ड आर्म्ड सिस्टम्स हैं। इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट ईरान की जंग पर गहरी नजर रखे हुए हैं। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इंडिया ईरान के तर्ज पर अपने अहम दिफाई असासों और हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गहरे ज़मींदोज़ मिलिट्री ठिकाने तामीर करने की तैयारियां कर रहा है। इसराइली फौज ने जुमे के रोज जनूबी लेबनान के 5 देहात के रिहायशियों से फौरी तौर पर इन इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया है। BBC फारसी की खबर के मुताबिक ये इकदाम हिजबुल्लाह के खिलाफ मुमकिन हमलों और लड़ाई को रोकने के लिए होने वाली जंग बंदी के बावजूद सामने आया है। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने सोशल नेटवर्क एक्स पर ऐलान किया कि हिजबुल्लाह की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी के पेश नज़र फौज उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने पर मजबूर है। पैगाम में लेबनान के जनूबी साहिल पर वाक़ शहर तायर के करीब 5 देहातों के नाम शाया किए गए हैं। अपने पैगाम में तर्जुमान ने मुतनब्बे किया है कि अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को फौरी तौर पर खाली कर दें और इन इलाकों से कम अज कम 1000 मीटर दूर रहें। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 16 अप्रैल को इसराइल और लेबनान की हुकूमतों के दरमियान जंग बंदी के ऐलान किया गया था। ताहम इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान एक दूसरे पर वक्तन फवक्तन हमलों की खबरें सामने आती रही हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान आज से वाशिंगटन में अमन के लिए नए मुज़ाकरात भी शुरू हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी को भी अभी बरकरार समझा जा रहा है, अगरचे इसराइली हमलों में सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। लेबनानी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता माह जंग बंदी के ऐलान के बाद से अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान से ह्यूगो शेगा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आरिफ शमीम। लुबनान में जंग बंदी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जंग रुकी नहीं है। तिब्बी अमले ने जो मुसलसल इसराइली हमलों का निशाना बने हुए हैं, इसराइल के इस फिजाई हमले को कैमरे में महफूज कर लिया है। इसराइल कहता है कि वो हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, लेकिन अक्सर आम शहरी मारे जा रहे हैं। कई दहाइयों से हिजबुल्लाह इसराइल पर रॉकेट फायर कर रही है। ये ग्रुप दोबारा हमले कर रहा है और किसी को नहीं मालूम कि ये जंग आखिर कब खत्म होगी। हम मीलों तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आता। हमें सिर्फ इसराइली ड्रोन नजर आता है जो हर चीज और हर शख्स पर नजर रखे हुए है। फ्रंट लाइन से दूर गांव में भी जंग हमेशा करीब महसूस होती है। हुसैन हमें अपनी तबाहशुदा दुकान पर ले गए, जो पड़ोस की इमारत पर इसराइली हमले की वजह से तबाह हो गई। अब लोगों को इलाका छोड़ने के लिए वार्निंग दी गई है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने आबाई कस्बे से नहीं जाऊँगा, ये मेरा अपना आबाई घर है। हम मजीद जुनूब की तरफ जाते हैं, इस जमीन के करीब जिस पर अब इसराइल का कब्जा है। इस सड़क पर ये लुबनानी फौज की आखिरी चौकी है और वहाँ वो येलो लाइन है, यानी लुबनान का वो हिस्सा जो अब इसराइली कब्जे में है। यहाँ फौजियों ने हमें बताया कि इसराइली फौज पहाड़ी के ऊपर मौजूद घरों से कार्रवाइयाँ कर रही है। यह लुबनानियों के लिए ममनुआ इलाका है। एक इसराइली फजाई हमले ने रजा का कारोबार और घर तबाह कर दिया और इसके भाई और दर्जनों पड़ोसियों को मार दिया। वो कहते हैं कि ये सब आम शहरी थे। हिजबुल्लाह कौन है? ये मैं हूँ, आप हैं और वो हैं। वो ज़मीन के दिफा के लिए बने थे। जब तक लुबनान पर कब्जा या खतरा रहेगा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जंगबंदी के दौरान लुबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं।
जंग जारी है और खुली कब्रें नई लाशों का इंतजार कर रही हैं। ये सिर्फ नाम की जंगबंदी है। इंडिया में 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी बहस तेज हो गई है। इंडियन हुकाम के मुताबिक फी लीटर कीमत में 3 रुपए इजाफा आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों और दरामदी दबाव को कम करने के लिए किया गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 77 रुपए और डीजल की कीमत 67 रुपए फी लीटर हो गई है। इंडिया जो अपनी तेल की जरूरियात का तकरीबन 85% दरामद करता है, हालिया बरसों में कीमतें मुंजमद रखे हुए था। ताहम आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और जुग्राफियाई कशीदगी के बाइस हुकूमती पॉलिसी पर दबाव बढ़ा है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इजाफे को आवाम दुश्मन करार देते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि सोशल मीडिया पर भी अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान के साथ तकाबली बहस भी दोबारा शुरू हो गई है, जहां हालिया बरसों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 2022 से लेकर अब तक मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में डीजल की कीमत 144 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर थी। ताहम 4 साल के बाद आज पाकिस्तान में दोनों की कीमत 415 रुपए फी लीटर हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया में खाम तेल साफ करने वाली रिफाइनरियां मौजूद हैं, इसलिए इंडिया ज्यादातर खाम तेल दरामद करता है और फिर इससे डीजल और पेट्रोल तैयार करके मुकामी सार्फिन को फरोख्त करता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसका फायदा यह है कि डीजल की कीमत आलमी मार्केट में ज्यादा है, जबकि खाम तेल की कीमत कम है। मिसाल के तौर पर इस वक्त डीजल की कीमत $160 फी बैरल है, जबकि खाम तेल $105 फी बैरल है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान 70% पेट्रोल दरामद करता है और 30% मुकामी रिफाइनरियों से आता है, जबकि इंडिया ज्यादातर पेट्रोल मुकामी सतह पर पैदा करता है। माहिरीन के मुताबिक दूसरा पहलू टैक्सों का है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया था, तो हम आज 4 साल बाद मजमूई तौर पर दोनों पर 160 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया में आलमी बहरान के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में कमी की गई है, जबकि इंडिया ने गुज़िश्ता 4 सालों में रूस से भी काफी खाम तेल खरीदा है, जो इसे रियायती निर्खों पर मिलता है। दोनों ममालिक में फर्क की बड़ी वजूहात में रुपए की कदर, टैक्स पॉलिसी, तेल की दरामदी साख्त और रिफाइनरी निज़ाम भी शामिल है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इंडिया में निस्बतन मुस्तहकम करेंसी और रियायती खाम तेल की खरीदारी ने कीमतों को काबू में रखा, जबकि पाकिस्तान में करेंसी की कदर में कमी और टैक्स बोझ ने ईंधन महंगा कर दिया है। सामीन, यूक्रेन तवील अरसे से दुनिया में सरोगेसी के बड़े मराकज में से एक रहा है। यहाँ निस्बतन कम अखराजात और नरम कावानीन की वजह से दुनिया भर से वालदैन आते हैं। रूसी हमले के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और दर हकीकत वहाँ के फर्टिलिटी क्लिनिक्स इन जंगी हालात में भी काम करते रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की पार्लियामेंट में जेर बहस एक मुजवजा कानून गैर मुल्की वालदैन के लिए सरोगेसी पर पाबंदी लगा सकता है। ये एक ऐसा कदम होगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरोगेसी मार्केट में से एक को खत्म कर सकता है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से सोफिया बातीजा की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नस्की। एक बच्चा अपने वालिदैन का इंतजार कर रहा है, जो जंग के बावजूद सरोगेसी के लिए यूक्रेन आ रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जो अभी भी हमलों की जद में है। हमने अभी एयर अलार्म सुना है, जिसका मतलब है कि तमाम बच्चों को हिफाजत के लिए तहखाने में मुंतकिल किया जा रहा है। हमें ये पता लगा कि अक्सर औक़ात इन वालिदैन को अपने बच्चों को लेने में ताख़ीर का सामना है। कभी कभी तो ये ताख़ीर कई महीनों तक रहती है। ये आम बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं। तकरीबन 80% केसेस में ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को कोई लेने नहीं आता। वी के वालिदैन ने उसे सरोगेसी के जरिए पैदा करवाने के लिए अदायगी की थी, लेकिन फिर उन्होंने उसे यहीं छोड़ दिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि उसे शदीद दिमागी चोट लगी है, तो वो उसे लेने नहीं आए।
ایسے کیسز کی وجہ سے اس پالیسی میں تبدیلی کے مطالبات جنم لے رہے ہیں۔ یوکرین کی پارلیمنٹ ایک نئے قانون پر غور کر رہی ہے جس کے تحت غیر ملکی جوڑوں کے لیے سیروگیسی پر پابندی لگا دی جائے گی، اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی سیروگیسی مارکیٹس میں سے ایک تقریباً بند ہو جائے گی۔ اس بل کا مقصد اس بارے میں ضابطے بنانا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس سیروگیسی کے حوالے سے کوئی باقاعدہ قوانین موجود نہیں ہیں۔ لیکن ان خواتین کے لیے جو سیروگیٹ ماں بننے کا فیصلہ کرتی ہیں، یہ ایک اہم سہارا ہے۔ کرینا کا گھر باخمود کے محاذ پر لڑائی میں تباہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے ایک چینی جوڑے کے لیے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بدلے میں انہیں $17,000 ملیں گے۔ میں جتنی بار بھی سیروگیسی کر سکتی ہوں کرتی رہوں گی جب تک میری صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن سیروگیسی پر پابندی سے میرے تمام منصوبے تباہ ہو جائیں گے۔ اس ممکنہ پابندی سے صرف ان خواتین ہی کے منصوبے نہیں بلکہ دنیا بھر کے والدین بننے کا خواب رکھنے والے لوگوں کے منصوبے بھی متاثر ہوں گے۔ ہمت راج اور راجویر باجوہ سیروگیسی کے ذریعے بچہ حاصل کرنے لندن سے کییو آئے ہیں۔ ہم یقیناً اس پابندی کے خلاف ہوں گے، کیونکہ ہمارے اپنے حالات کو دیکھیں تو یہ تجربہ شاندار رہا ہے۔ یہ صرف پیسے یا سیاست کا معاملہ نہیں بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو خوشی دینا ہے، ایسی خوشی جس کے بارے میں ہم جیسے لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس مجوزہ پابندی پر ووٹنگ اس سال ہونے کی توقع ہے، لیکن ایسا ہونے سے پہلے بہت سے لوگ والدین بننے کے لیے ہر خطرہ مول لے رہے ہیں، جن میں سے ایک خطرہ جنگ کے باوجود یوکرین کا رخ کرنا ہے۔ مشرقی لندن کی ایک مسجد کے پیش امام عبدالحلیم خان کو 12 سال تک کی کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور ذہنی دباؤ کے ذریعے خاموش رکھنے کے جرائم میں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ عدالت میں بتایا گیا کہ وہ 2004 سے 2015 کے دوران مقامی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی 7 لڑکیوں اور خواتین کو یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ بدروحوں، کالے جادو یا مافوق الفطرت اثرات کا شکار ہیں اور صرف وہی ان کا علاج کر سکتا ہے۔ اسی بہانے وہ متاثرین کو تنہائی میں بلاتا، ان پر جنسی حملے کرتا اور پھر دھمکاتا کہ اگر کسی کو بتایا گیا تو ان پر اور ان کے خاندان پر خوفناک آفات نازل ہوں گی۔ مزید تفصیل لندن سے ہمارے نمائندے کی زبانی۔ ایسٹ لندن کی سنیئر بروک کرانس کورٹ میں آج ایک ایسے انڈین اوریجن مسجد امام کو یہاں پر 13 ڈفرنٹ عمر قید کی سزائیں ہوئی ہیں، جس میں ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً 11 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک 12 سالہ بچی سمیت 20 مختلف انہوں نے جو آفینسز کیے، جس میں انہوں نے جو ریپ کیا مختلف جو بنگلہ دیشی اوریجن جو خواتین تھیں ان کا، جس میں بچے بھی شامل تھے، اور انہوں نے دعویٰ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ پیر ہیں، وہ اسپریچول ہیلر ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس غیبی طاقت ہے، یہ کہ ان کے پاس جن ہیں، وہ جن ان کے قابو میں بھی ہیں، اور یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے جن نکالتے بھی ہیں، وہ کینسر کا علاج بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے ایک پورا اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا ایسٹ لندن کے ایریا میں جہاں بنگلہ دیشی مسلم کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ عبدالحلیم خان کا اوریجنلی تعلق انڈیا سے تھا، اور وہ جب برطانیہ آئے لیٹ 90s میں تو اس کے بعد وہ یہاں پر ماسک امام بنے۔ ایسٹ لندن کا ایک ایریا ہے جہاں سے وہ ایک مسجد کے ساتھ انیشلی منسلک ہوئے، جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے ان پر الزام یہ لگایا تھا کہ 2004 سے لے کر 2015 تک کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں انہوں نے تقریباً 21 مختلف اوقات پر انہوں نے مختلف خواتین کے ساتھ انہوں نے ان کا پہلے ٹرسٹ جیتا، اپنے آپ کو ایک پیر اور ایک بہت بڑے عالم کے طور پر پیش کیا کہ جن کے پاس روحانی جو طاقت تھی جن کے پاس، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بچوں سمیت انہوں نے ینگ خواتین اور شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بھی انہوں نے مختلف اوقات میں درجنوں دفعہ انہوں نے ریپ کیا، اور وہ یہ کہتے یہ تھے کہ وہ جب وہ ریپ کر لیتے تھے ان خواتین کا تو ان کو پھر یہ کہتے تھے کہ وہ ایکچولی ان کو جن نکال رہے ہیں، اور یہ کہ جن نکل جانے کے بعد اب وہ بات آگے کسی کو نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے پھر یہ بھی ان کو کہا کہ اگر جو جن نکالنے کا انہوں نے ان کے ساتھ جو عمل کیا گاڑیوں کے اندر، فلیٹس کے اندر اور مختلف لوکیشنز کے اندر جو مسجد سے دور ہوتی تھی، مسجد کے اندر انہوں نے ایسے یہ کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے کہ وہ پیر بن کر لوگوں کے گھر جاتے تھے عمل کرنے کے لیے، اور اس طرح انہوں نے ایک جو پوری ایک کیمپین چلائی 10 سے 11 سال تک۔ اس کو رپورٹ کیا گیا سب سے پہلے جو 2014 میں جو سب سے پہلے اس کو رپورٹ کیا گیا 2017-18 میں، اور اس کے بعد 2023 میں جا کر پہلی بار پولیس نے عبدالحلیم خان کو گرفتار کیا۔ 50 سے زیادہ ایسے وٹنسز تھے جنہوں نے پولیس نے انٹرویو کیا، انہوں نے فون
लोगों के कब्ज़े में ली और फिर उन्होंने पूरा इस्टेब्लिश किया कि 2004 से लेकर 2015 के दरमियान अब्दुल हलीम ख़ान ने क्या किया। उनका जो ईस्ट लंदन की जो बड़ी मशहूर जो तबलीगी मस्जिद है उसके साथ एसोसिएटेड एक तबलीगी मस्जिद है, अपने आखिरी पिछले चंद सालों में वो उस मस्जिद के साथ भी वो मुंसलिक रहे, लेकिन उस मस्जिद ने ये कहा है कि अब्दुल हलीम ख़ान के जो इक़दामात से उनसे किसी किस्म का मस्जिद का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म था जो बरतानवी कवानीन के भी ख़िलाफ़ था, इस्लाम की कवानीन के भी ख़िलाफ़ था। जज ने आज जहाँ पर सेंटेंसिंग करते हुए ये कहा कि किसी मस्जिद का इमाम होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ये कि एक मस्जिद जो इमाम होता है उसका बहुत तकद्दुस भी है, बहुत बड़ा मकाम भी है, और ये कि उन्होंने उस तकद्दुस को ब्रीच किया। इस तरह उनको 13 मुख्तलिफ़ काउंट्स के ऊपर 13 मुख्तलिफ़ लाइफ सेंटेंसेस सुना दी गई हैं, और अब उनको मिनिमम 20 साल, अभी अब्दुल हलीम ख़ान की उम्र 55 ईयर्स है, उनको तकरीबन 75 साल की उम्र तक उनको कोर्ट जो जेल में रहना पड़ेगा। और जज ने ये भी कहा है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर आएंगे। इंडिया की मशरकी रियासत झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फैज़ान उल्लाह हाथ से लिख नहीं पाते और मुंह के जरिए लिखते हैं। उन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान में 93.80% नंबर हासिल किए हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद सरताज आलम से। दांतों के सहारे कलम से लिखने वाले मोहम्मद फैज़ानुल्लाह की 10वीं के इम्तिहान में शानदार कामयाबी किसी तमगे से कम नहीं। हाई स्कूल इम्तिहानात में उन्होंने तकरीबन 94% नंबर हासिल किए हैं। सेरेब्रल पॉल्सी नामी मर्ज से दो चार इंडिया की मशरक़ी रियासत झारखंड के गोड्डा ज़िले के मोहम्मद फैज़ानुल्लाह अपने मर्ज़ की वजह से कभी स्कूल भी नहीं जा सके। इतना ही नहीं, हाई स्कूल के इम्तिहानात में मुआविन राइटर दस्तयाब होने के बावजूद उन्होंने ज़्यादातर इम्तिहानात के पर्चे खुद ही लिखे। इम्तिहानात में मिले नंबरों की वजह से वो खासे पुरजोश हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, प्राउड मोमेंट है कि मैंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। रिज़ल्ट के बाद से मोहम्मद फैज़ानुल्लाह का हौसला बुलंद है और उनकी इस कामयाबी पर उनके अहल खाना को फ़ख्र है। निहायत ही खुशी हुई जब मेरे बच्चे ने मैट्रिक इम्तिहान 10वीं पास में अव्वल पोजीशन झारखंड किया तो बहुत खुशी हुई। इंतहा न रही खुशी की, हम लोग मुस्कुराए और लोगों ने मुबारकबादी पेश की। हम लोगों ने भी लोगों को मिठाई खिलाया और मेरे बच्चे ने वो काम किया जो आम बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिससे लोग उम्मीद रखते हैं, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन मेरे बच्चों ने नाउमीदी में उम्मीद का चिराग दिखाया और किरण चमकाया। ये खुशी की बात है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। फैज़ान की ये कामयाबी उनकी बीमारी सेरेब्रल पॉल्सी से उनकी जद्दोजहद का खामोश जवाब है, जिसकी वजह से उन्हें 18 साल की उम्र में ही हर वक्त घर की चारदीवारी में रहने पर मजबूर होना पड़ा। सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से उनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में उनके वालिदैन ने एक घूंट पानी पिलाने से लेकर रोज़मर्रा की हर तरह की ज़रूरतों में हर कदम पर उनका साथ दिया। मैं 100% सीपी हूँ। इस डिसेबिलिटी के कारण मेरे शरीर के काफ़ी अंग, बल्कि ज़्यादातर अंग काम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं अपने हाथ से सिर्फ 50 ग्राम की वस्तु को उठा सकता हूँ, उससे ज़्यादा की वस्तु को नहीं उठा सकता। तो मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम को नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। माँ नजमा बेटे के मामले में ज़रा जज्बाती हैं। उनका कहना है कि फैज़ानुल्लाह के मर्ज़ की वजह से उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी लगता है जैसे हम लोग को कहीं जाना पड़ता है तो इसके वजह से हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं मजबूरी में, इसका मजबूरी से हम कहीं रह नहीं सकते हैं, तो इसके वजह से थोड़ा सा लगता है कि अल्लाह ताला इसको चला देता बेहतर होता, या किसी तरह घसा के भी चलता तो लेटरिन बाथरूम चले जाता है। सबसे मेन बात है, कहीं जाते हैं तो इसका लेटरिन बाथरूम का दिक्कत होता है, इसके वजह से हम कहीं रह नहीं पाते हैं। एक प्राइवेट मदरसे में मामूली सी सैलरी पर काम करने वाले उनके वालिद मोहम्मद अनवार आलम को मलाल है कि बेटे का इलाज कराने के बावजूद वो उसे सेहतमंद नहीं देख सके। डॉक्टर ने बोल दिया कि इलाज है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा बच्चा अक्सर नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों ने अल्लाह ताला की मर्जी पर करके इसकी अच्छी परवरिश करने की कोशिश किया कि ये मेरे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला जैसा चाहे, जैसा मर्जी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने इसका अच्छा उम्दा खाना पीना जो भी अपने हैसियत से हुआ कोशिश किया। फिर लोगों ने बोला इसको पढ़ाइए लिखाइए।
انوار عالم نے بیٹے فیضان اللہ کا داخلہ مقامی پرائیویٹ اسکول میں کروا تو دیا، لیکن اسکول نہ جا پانے کی وجہ سے انہوں نے بیٹے کی ابتدائی تعلیم زبانی طور پر گھر پر ہی کروائی۔ جب فیضان اللہ کا داخلہ 6ٹھی جماعت میں ہوا تو ان کے استاد جتیندر کمار بھگت نے ان کو گھر پر آ کر پڑھانا شروع کیا۔ سن 2022 میں انہوں نے فیضان اللہ کے منہ میں قلم رکھ کر لکھنے کی مشق کروانی شروع کی۔ تو سب سے بڑا سمسیا تھا اس کا لکھنا، تو لکھنے کے لیے پہلے ہم لوگ پین لے کے اس پہ دھاگا باندھ کر اسے پکڑانے کے، لیکن وہ بھی سفل نہیں رہا۔ پھر ہم بولے کہ نہیں، تو پھر وہ جو بال والا پین ہوتا ہے اس کے منہ پہ میں نے بولا اس کو پکڑ کے دیکھو، تو کیونکہ وہ دانت زیادہ دیر تک داب نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے بولا کہ پریاس کرو، پریاس کرنے سے سب کچھ سمبھو ہو سکتا ہے۔ اور میں نے جب منہ سے لکھنا شروع کیا تو میری رائٹنگ اچھی بنی، اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اچھی بنی، اور پھر اسی وقت سے میں لگاتار منہ سے لکھتا گیا، اور کلاس 8 تک آتے آتے میری رائٹنگ اتنی اچھی ہو گئی کہ اگر سامنے والا کو 2 کاپی دیا جائے جس میں ایک سامانیہ بچے کی رائٹنگ ہو اور ایک میری رائٹنگ ہو تو وہ انتر نہیں بتا پاتا ہے کہ کون سی میری کاپی ہے اور کون سی سامانیہ بچے کی۔ 240 معذور بچوں کی تعلیمی مہم پر مامور ٹیچر جتیندر کمار بھگت نے فیضان اللہ کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ کر انہیں ہر روز زیادہ سے زیادہ وقت دیا اور فیضان اللہ کو ہر مضمون میں خوب نکھارا۔ شروعات میں تو مجھے نہیں لگا، بٹ جب میں مڈ ٹرم میں آیا، یعنی جب 6 مہینہ گزر گیا پڑھائی کا، تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں اچھا نمبر لاؤں گا۔ جتیندر کمار کی لگن، فیضان اللہ کی فیملی کی جدوجہد اور خود فیضان اللہ کی مضبوط قوت ارادی اور کڑی محنت کے نتیجے میں انہوں نے یہ شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی نہیں، گزشتہ 18 فروری کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ ایک تقریری مقابلے میں تعلیم کی اہمیت پر زبردست تقریر کی وجہ سے فیضان اللہ کو انعام میں لیپ ٹاپ دیا گیا، جس کی وجہ سے فیضان اللہ نے دھیرے دھیرے کئی سافٹ ویئر پروگرام میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ میرا فنگر موو نہیں ہوتا ہے بٹ میرا فنگر ٹچ کر سکتا ہے، اور میرا یہ رول ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ فنگر موو نہیں ہوتا اس لیے میں پین پکڑ کے لکھ نہیں سکتا، بٹ میرا فنگر ٹچ کر سکتا ہے اور لیپ ٹاپ کے لیے یہ انف ہے، تو میں اپنے فنگر کے ٹچ کے دوارا میں اپنے لیپ ٹاپ کا یوز کرتا ہوں، کی بورڈ کو ٹائپ کرتا ہوں، 2 ہی فنگر سے ٹائپ کرتا ہوں لیکن کرتا ہوں، اور اس میں میں سارا کام کرتا ہوں۔ مجھے MS ایکسل بھی آتا ہے، پاور پوائنٹ بھی آتا ہے، اور MS پینٹ بھی آتا ہے، اور AI بھی آتا ہے۔ برطانیہ کا سب سے بڑا شکاری پرندہ وائٹ ٹیلڈ ایگل یعنی سفید دم والا عقاب اس موسم گرما میں جنوبی مغربی انگلینڈ کے ایک نیشنل پارک میں حکومتی منصوبے کے تحت آزاد چھوڑا جائے گا۔ تاہم بعض مویشی پالنے والوں کو خدشہ ہے کہ یہ پرندے ان کی بھیڑوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جینی کوما کی رپورٹ دیکھیے ختیجہ عارف کی آواز میں۔ اپنے 2.5 میٹر لمبے پروں کے ساتھ یہ شاندار پرندے قابل دید نظارہ ہیں۔ 100 سال پہلے معدومیت کا شکار ہونے کے بعد اب کنزرویشنسٹ کا کہنا ہے کہ جنوبی انگلینڈ میں ان کو دوبارہ متعارف کروانے کا پروجیکٹ کامیاب ہو رہا ہے، جس سے نیچر ریکور کر رہی ہے اور سیاحت کو بھی فروغ مل رہی ہے۔ لیکن اسکاٹ لینڈ میں فارمرز کہتے ہیں کہ ایسی ہی اسکیم 1975 میں شروع ہونے کے بعد کئی پرندے ان کے مویشی کھا گئے۔ ایک شخص نے اس عقاب کو بھیڑ کے بچے کو پکڑتے وقت یہ ویڈیو بنائی۔ یہ آسان موت بھی نہیں ہوتی، اگر وہ صحیح سے پکڑیں تو آسان موت ہوتی ہے، لیکن یہ انہیں زندہ کھا جاتے ہیں، تو آپ بس بیٹھ کر یہ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے گروپس کا کہنا ہے کہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ عقاب بنیادی طور پر بھیڑ کے بچوں کو مارنے کے بجائے انہیں اس وقت ہی اٹھاتے ہیں جب وہ پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ کسان اس سے متفق نہیں ہیں، اور اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے ان چیلنجز کو تسلیم کیا ہے اور وہ انہیں خطرات سے نمٹنے میں مدد کے لیے ہزاروں ڈالر ادا کر رہی ہے۔ یہاں انگلینڈ کے جنوب میں فارمرز پریشان ہیں کہ انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہم ایسی صورتحال میں نہیں ہونا چاہتے جہاں جن بوتل سے نکل جائے اور ہمیں نقصان ہو، اور کیونکہ یہ ایک پروٹیکٹڈ پرندہ ہے ہم اس سے خود سے نمٹ بھی نہیں سکیں گے۔ پروجیکٹ پر کام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہاں فارمرز کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں مچھلیاں اور چھوٹے پرندے بڑی تعداد میں ہیں۔ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انگلینڈ کے جنوبی ساحل پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو ہمیں معلوم ہے کہ پرندے کیا کر رہے ہیں۔
लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो क्या प्लान है? अगर कोई परिंदा मसला कर रहा हुआ तो इस कैद में फिर से डाल दिया जा सकता है। हकीकत ये है कि ये परिंदे पहले से ही इस इलाके में हैं। सैटेलाइट ट्रैकर्स ने इस नेशनल पार्क में ऐसे 14 परिंदों की निशानदेही की है। ये बहस जारी रहेगी। कुछ उन्हें देखने के लिए बेताब होंगे, जबकि फार्मर्स अपने मवेशियों और जरिए माश के लिए परेशान हैं। सामीन, काजू के जायके के लिए तो इसे सभी जानते हैं, लेकिन इसके जबरदस्त फवाइद भी क्या आप जानते हैं? काजू वजन, फालिज, शुगर और कोलेस्ट्रॉल से बचाव के अलावा और क्या क्या करता है, सुनिए समरा फातिमा से। काजू के जायके के लिए तो इसे सब जानते हैं, लेकिन इसके जबरदस्त फायदे भी क्या आप जानते हैं? ये फायदे एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स फैट से भरपूर होते हैं, तो इनसे वजन बढ़ता होगा, लेकिन काजू वजन बढ़ाने नहीं, वजन कम करने में मदद करता है। यही नहीं, कोलेस्ट्रॉल और फालिज के खतरे को कम करने समेत और भी कई फायदे हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे आज बीबीसी रीड्स में। मैं हूँ समरा फातिमा। जैसे कि आप जानते हैं कि काजू का शुमार भी खुश्क मेवाजात में होता है। नबाताती तौर पर इनकी दर्जाबंदी बीजों में होती है, क्योंकि काजू के फल से हासिल होता है। ये फल बाहर से गूदे से भरपूर होते हैं, लेकिन अंदर से बीज के साथ एक खोल रखते हैं। काजू के दरख्त गर्म आबो हवा में उगते हैं, जैसे इंडिया और वियतनाम, जिनका शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा काजू पैदा करने वाले ममालिक में होता है। गुर्दे की शक्ल वाले हल्के फुल्के रंग और मूंगफली के मुकाबले में ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायके में कदरे मीठे काजू कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें कच्चा, भुना हुआ, सालन या चटनी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके फायदे गिनाने से पहले सबसे पहले मैं काजू में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत के बारे में आपको बताती हूँ। काजू में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर अमाउंट्स में होता है। और अब बात करते हैं उन 10 फायदों की जो काजू की वजह से हो सकते हैं। काजू इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं। काजू में फोलेट और विटामिन ई होता है, जो इंसानी जिस्म में खून की शरियानों को ब्लॉकेज से बचाने में मदद करता है। सन 2019 में की जाने वाली एक तहकीक में ये भी पाया गया कि काजू का रोजाना इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा फायदा है, काजू का इस्तेमाल लंबी उम्र पाने के लिए भी फायदेमंद है। तहकीक से पता चला है कि काजू में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैट्स किसी भी बीमारी या अमूमी हालत में मौत के खतरे को कम करते हैं। तीसरा फायदा, काजू जिस्म को ऑक्सीडेटिव टेंशन से बचाने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव तनाव वक्त के साथ साथ अज़ा, पट्ठों और यहाँ तक कि खलियों को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके नतीजे में पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव टेंशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद करते हैं। चौथा फायदा है, दिल की बीमारी और फालिज के खतरों को कम करने में मदद करता है काजू। होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड की एक किस्म है, लेकिन अगर जिस्म में इसकी सतह बहुत ज्यादा हो जाए तो ये सोजिश को बढ़ाता है और इस वजह से दिल की बीमारी या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। काजू का इस्तेमाल जिस्म में होमोसिस्टीन की सतह को कम करने में मदद देता है। पांचवा फायदा, काजू ऑस्टियोआर्थराइटिस के इख्तितात को कम करने में मदद कर सकते हैं। सन 2020 में एक मुताले से ये पता चला कि काजू के इस्तेमाल से मुश्तरका एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी सोजिश फवायद ऑस्टियोआर्थराइटिस के मनफी असरात के खिलाफ मदद करते हैं। छठा फायदा है, कोलाइटिस यानी आंतों की सोजिश में कमी में मददगार साबित होना। कोलाइटिस यानी आंतों की सोजिश की हालत, और तहकीक से पता चलता है कि काजू सोजिश को कम करने और कोलाइटिस की हालत को सेटल करने में मदद करता है। सातवां, वजन में सेहतमंद तरीके से कमी में मदद करता है काजू। जी हाँ, तहकीक से ये भी पता चला है कि जिन ग़िज़ाओं में काजू की ज़्यादा मकदार शामिल होती है वो वजन में कमी और मोटापे के खात्मे से वाबस्ता है। आठवां फ़ायदा है, खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करना। सन 2019 में एक तहकीक में पाया गया कि काजू के रोज़ाना इस्तेमाल से इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और इसी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए भी काजू का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। नवा फ़ायदा ये है कि काजू फालिज के खतरों को कम करने में मदद करता है। काजू मैग्नीशियम का एक अच्छा जरिया है और तहकीक से ये भी पता चला है कि मैग्नीशियम की खून में मौजूदगी फालिज के खतरे को
कम करने में मदद करती हैं। और 10वां ये फायदा है कि याददाश्त के चले जाने के खतरे को आप काजू खाकर कम कर सकते हैं। काजू की अच्छी ग़िज़ाई प्रोफाइल यानी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स याददाश्त से मुंसलिक मसाइल को कम करने और उनके खिलाफ मुमकिन फ़वाइद का बाइस बनती हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या काजू हर किसी के लिए महफूज और फ़ायदेमंद है? मुमकिन है कि कुछ लोगों में काजू के इस्तेमाल से एलर्जी हो, और अगर एलर्जी की कोई अलामत हो जैसे सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे, जुबान या होठों की सोजिश, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें क्योंकि ये ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। ये बात जहन में रखें कि जिन लोगों को खुश्क मेवाजात से एलर्जी होती है उनमें काजू से एलर्जी हो जाने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और आपने नाम सुना होगा काजू पनीर का। क्या काजू पनीर आपके लिए अच्छा है? काजू से बना हुआ पनीर आपके लिए एक बेहतर इंतखाब है क्योंकि ये कम से कम प्रोसेस किया हुआ पनीर होता है और आम तौर पर इसमें सिर्फ काजू और पानी या शायद थोड़ा सा लीमू का रस और खमीर शामिल होता है। काजू पनीर खरीदते वक्त लेबल चेक करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसमें चीनी या इजाफी तेल जैसी बहुत सारी इजाफी अज्जा शामिल न हो। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की है और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लिए उनकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है, जबकि मुल्क पर हमलों की सख्ती से मजम्मत भी की है। नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के यूरोपीय दौरों के सिलसिले से पहले जुमा 15 मई को अबू धाबी पहुंचे हैं। उनका ये दौरा खलीज फार्स में कशीदगी और तवानाई की सलामती के खदशात के दरमियान हुआ है। नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने एक्स नेटवर्क पर ऐलान किया कि इस सफर के दौरान तवानाई, दिफा, बुनियादी ढांचे, जहाजरानी और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मुआहदों पर साइन किए गए हैं।